like, share, and subscribe Edify India. Thank you. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। In my previous videos, in all of my videos, I explained you about biotechnology and class 12th level biotechnology. I hope कि आप सब ने वो वीडियो देखा होगा. So after watching all of my previous videos, if you haven't subscribed my channel, so please go and press the bell icon. Here we have a great surprise for our lucky subscribers. First is, आज जो भी हमारे लकी सब्सक्राइबर्स होंगे हम उनको अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर देंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा सरप्राइज़ है आपके लिए वो ये है कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, चीज़ों को सीखिए, लर्न कीजिए। एंड फ्रॉम दैट टुडे आवर टॉपिक विल बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से हमने एक पार्ट लिया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे बीटी कॉटन, और नेक्स्ट जो है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि हमारे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो उसमें से मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर इट करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ go and learn and answer me fast, and जिसने भी आंसर सही किया they will be getting 100 rupees cash prize. We will Paytm you. So don't waste your time, just learn and answer. Thank you. Applications of biotechnology. I already told you biotechnology, as you would learn it to have great importance in the human life, especially it is invented for changing and modifying the human lifestyle. So genetically modified microbes, fungi, plants and animals are used for production of biopharmaceuticals and biological applications. So here let us start. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediations, waste treatment and energy production. So as you can see, biotechnology have great application in medical sciences, in agriculture, in waste treatment and food industry as well. So there are basically three options that can be thought for increasing food production. As we know about, first is agrochemical based agriculture. Agrochemical हमें पता है कि क्या होता है। कभी भी किसी भी फार्म में जाके आप देखोगे तो आजकल केमिकल्स का यूज़ होता है, मेनली पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जिसके थ्रू हम इंसेक्ट्स को किल करते हैं और हम अपने जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करवा सकते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स से बचा सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जो हमारी क्रॉप है वो कभी कभी वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है, एंड जो हमें मिलता है फाइनलाइज वीट, राइस, जो भी क्रॉप है वो जब हमें मिलती है एक फाइनलाइज प्रोडक्ट के टाइम पे, उसमें चांसेस होते हैं एंड इट इज़ प्रोबेबली प्रूव दैट उसमें केमिकल होता है दैट कुड बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ फॉर improving and protecting the human lifestyle. So here it is agrochemical agriculture, agro-based. Next is organic agriculture. Organic farming, जो खाद है हम बोलते हैं, खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है वो, तो और उसमें क्या होता है, ह्यूमस रहता है, दैट इज़ प्योरली फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द नेचर, द सॉइल. It is contaminant free, that is it is not at all having any type of chemicals, so that is organic. The agriculture done is organic agriculture. Third is genetically engineered crop based agriculture, so that is really important, and it is the biotechnological agricultural application. So हम क्रॉप्स को जेनेटिकली चेंज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द क्रॉप, एंड इसी एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. सो लेट्स सी
biotechnological applications in agriculture. So there are basically three options that can be thought for increasing food production. As we know about, first is agrochemical based agriculture. Agrochemical हमें पता है कि क्या होता है. कभी भी किसी भी फार्म में जाके आप देखोगे तो आजकल केमिकल्स का यूज़ होता है, मेनली पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जिसके थ्रू हम इंसेक्ट्स को किल करते हैं और हम अपने जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करवा सकते हैं या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स से बचा सकते हैं. लेकिन इसमें होता क्या है, जो हमारी क्रॉप है वो कभी कभी वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है, एंड जो हमें मिलता है फाइनलाइज वीट राइस जो भी क्रॉप है वो जब हमें मिलती है एक फाइनलाइज प्रोडक्ट के टाइम पे, उसमें चांसेस होते हैं एंड इट इज़ प्रोबेबली प्रूव्ड दैट उसमें केमिकल होता है दैट कुड बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ. एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ फॉर improving and protecting the human lifestyle. So here it is agrochemical agriculture, agro-based. Next is organic agriculture. Organic farming जो खाद है हम बोलते हैं, खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है वो तो, और उसमें क्या होता है, ह्यूमस रहता है, दैट इज प्योरली फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द नेचर, द सॉइल. It is contaminant free, that is it is not at all having any type of chemicals, so that is organic. The agriculture done is organic agriculture. Third is genetically engineered crop based agriculture, so that is really important, and it is the biotechnological agricultural application. So हम crops को genetically change कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द क्रॉप, एंड इसी एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. सो लेट्स सी. एज वी नो अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अनडाउटेडली आफ्टर दिस द प्रोडक्शन एंड द सप्लाई was increased, it was tripled, but the thing that people was facing at that time was, क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी जल्दी रहती थी प्रोडक्शन की, सप्लाई की, तो जो क्रॉप्स बनाते थे वो एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर में आ गई थी उस टाइम पे. सो व्हाट हैपन, जो वो रहते थे क्रॉप्स, उसमें केमिकल्स पेस्टिसाइड्स डाले जाते थे, जिसके कारण जो क्रॉप्स थे वो इफ़ेक्टिव हो जाते थे, जिस कारण वो हार्मफुल बन जाते थे, एंड फिर वही क्रॉप जब किसी को सप्लाई करना रहता था, सो इट इज़ हार्मफुल. सो फॉर कोपिंग अप विद दिस, देयर इज द इन्वेंशन फॉर जेनेटिकली engineered crop. Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. Focus, हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी बोला है ऑर्गेनिजम्स. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स, जिसके भी जीन्स हमने चेंज करे हैं, मैनिपुलेट करे हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और GMO. And GM plants, genetically modified plants, have been useful in many ways. Okay? GM plants जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो अलग अलग टाइप से यूज़फुल होते हैं. उनके कुछ वेज ये हैं. फर्स्ट, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. व्हाट आर एबायोटिक स्ट्रेसेस? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट. ये कुछ ऐसे कंडीशंस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे चैलेंजेस जो एक प्लांट अपनी ग्रोथ लाइफ में, ग्रोथ साइकिल में फेस करता है, उसको टॉलरेंट करने में हेल्प करता है. यहाँ पे हमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है. नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. As I already told you, these are pest resistant crops, so no need of using any pesticides. Now जो हमारी reliability या फिर हमारी dependence थी वो ख़त्म हो चुकी है pesticides पे. Third is helped to reduce post harvest losses. काफ़ी बार ऐसा होता था कि chemicals छिड़क दिए farmers ने, जब harvesting का टाइम आता था तो काफ़ी सारी crops ख़राब हो जाती थी.
तो वो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है या फिर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाना या फिर क्रॉप ख़राब हो जाना, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई. Next, increased efficiency of mineral usage by plants. This prevents early exhaustion of fertility of soil. स्टार्टिंग में जैसे प्लांट्स को डाला और फिर एकदम से वो लोग ज़्यादा लेने लगे, मिनरल्स लेने लगे, न्यूट्रिएंट्स लेने लगे और अच्छी ग्रोथ होने लगी, एकदम से ग्रोथ साइकिल नीचे भी आ सकती है वो न्यूट्रिएंट्स कम होने के कारण. एंड वी आर अनअवेयर ऑफ दैट. सो टू प्रिवेंट दिस, आगे चल के क्या हो रहा है कि उनकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है. लेकिन यहाँ पे जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है तो प्लांट अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतने ही न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो वो काफ़ी एफिशिएंट है. एंड द लास्ट इज एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. एग्जाम्पल, विटामिन ए एनरिच्ड राइस. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, उससे हमें क्या मिला है कि एफिशिएंट एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला राइस मिला है जिसमें विटामिन ए होता है. फर्स्ट application we will be studying is Bt cotton. Bt stands for Bacillus thuringiensis, and Bacillus thuringiensis produces a protein that kills certain insects such as Lepidopterans like tobacco, woodworm, flies, mosquitoes, beetles, etc. So ये जो स्ट्रेन है बैसिलस thuringiensis का, ये एक प्रोटीन बनाता है जो कुछ इंसेक्ट्स को किल करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं या फ्लाइज हैं, ये सब कुछ है ना. एक टोबैको बर्ड वॉर्म है जो टोबैको के प्लांट को इफेक्ट करती है, तो बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उनके अगेंस्ट, उनको किल कर देते हैं. सो हमने उसका यूज़ करा. वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एक इंसेक्टिसीडियल प्रोटीन होता है. सो these crystals contain a toxic insecticidal proteins. Now you will be having one question in your mind that why does this toxin not kill the bacillus? So the answer is, क्या होता है जो Bt toxin है, you can see here written the Bt toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystal. So जो फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज में जो टॉक्सिन है बैसिलस के अंदर, वो कैसा है, इनएक्टिवेट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन. एंड जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट के पास आता है जिसमें बीटी कॉटन हमने करा हुआ है, तो वो उस बैसिलस thuringiensis को जैसे ही उसको खाता है, वैसे ही उसके जैसे इंजेस्ट किया तो उसके गट जो है उसका पीएच कैसा है, एल्कलाइन होगा. तो उस एल्कलिनिटी के कारण वो जो बैसिलस है उसका प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट होकर टॉक्सिन बन जाएगा. एंड it will do the lysis to the insect. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells. किसके epithelial cells से, insect के, and create pores that causes cell swelling and lysis and eventually causes death of the insect. It will be bursting because of that bacillus toxin. Protoxin activates to form toxin in the midgut of the insect. So, and in this way there will be lysis of the cell. So in the picture you can see picture A, the green part you can see that is a destroyed part by a bollworm, and at the B you can see a fully matured cotton ball. This is Bt cotton. Pest resistant plants. Pest resistant plants are the plants that have the ability to resist the pest. Okay, several nematodes, parasites, a wide variety of plants and animals including human beings. So let's begin. That a nematode, Maledicine incognitia, infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yield. So
दिस इज अ नेमाटोड दैट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो रुक जाता है। इसके लिए एक नोवल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जो कि है RNA इंटरफेरेंस, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं RNAi। सो RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. सेल्यूलर डिफेंस मतलब सेल्स की प्रोटेक्शन करता है, उसको पैथोजन या कुछ जो भी हार्मफुल है उनसे उसको डिफेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA, that is double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of mRNA, and this process is called silencing. सो साइलेंसिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो RNAi है इंटरफेरेंस, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को mRNA जो मैसेंजर RNA है वो आगे तक सप्लाई कर रहा है मैसेंजर RNA कोडिंग्स को, तो वो क्या करता है RNAi, उसका काम है इंटरफेयर करना, इसलिए उसका नाम है RNA इंटरफेरेंस। तो वो इंटरफेरेंस करके उस चीज़ को रोक देता है वहीं पे। सो this process is called as silencing, that is to make it silence. The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genomes or mobile genetic elements, also known as transposons. Now as you can see in picture, it is host plant generated dsRNA triggers protection against nematode infestation. dsRNA अपने डबल स्ट्रैंडेड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कहाँ से आए हैं, एक सेंस से और एक एंटी सेंस से, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन लोगों ने बाइंडिंग की है एंड dsRNA बना दिया, जिसके कारण mRNA का जो प्रोसेसिंग थी वो साइलेंस हो गई, रुक गई, जिसको हमने साइलेंसिंग बोला। ए में आप देख सकते हैं येलो कलर के, दीज आर द रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, एंड इन बी यू कैन सी ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism. What is novel mechanism? RNA interference. So the consequences was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing a specific interfering RNA. The transgenic plant further got itself protected from the parasite. So transgenic होस्ट मतलब जो होस्ट है हमने उसके जीन्स में चेंजेस कर दिए, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और जब उसके जीन्स में चेंजेस हुए तो हमने उसको बोल दिया ट्रांसजेनिक, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द जीन। जो mRNA है उसकी प्रोसेस को रोक के हमने वहाँ पे साइलेंसिंग लगा दी है, कैसे dsRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA बना के RNA इंटरफेरेंस को यूज़ करके, तो उसके mRNA की जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है। सो ultimately the transgenic plant after this got itself protected from the parasite. So I hope you have learned and understood the topic well. If not, then let me know your doubts, and the next thing is for our question round from our video. So the question for the video will be, please let me know the full form of GMO in the comment section. Thank you. Please like, share and subscribe Edify India. Thank you.